कुरान है, कुरान है, अल्लाह पाक ने ये हुक्म दिया है कि कुरान को तदब्बुर से पढ़ो, ठीक। अब आपने तदब्बुर से पढ़ लिया, आपने एक फहम ले लिया, बस ठीक है, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं इसको मानो? भाई वो आपका फहम है, बिल्कुल। मैं नहीं मानता। बनी इसराइल जो है वो खुद को नबी मानता है, वो भी ठीक है। हर आदमी अगर अपने फहम से उसको समझेगा और वो ठीक है, फिर तो ये पूरा पड्डा किस लिए? भाई पड्डा सिर्फ इतना है कि वो है हकम और अदल, उनको मानना होगा, नहीं तो वो इंसान कामयाब नहीं हो जाएगा। वरना हर आदमी अपना फहम ले रहा है, जो करना चाहे वो तो ठीक है, फिर दावत तबलीग की जरूरत ही नहीं। अब ये आया हुआ है ना नूरुद्दीन, मिर्जा गुलाम नूरुद्दीन, वो आया हुआ है, वही तो कहता है मैं खुद हूँ, तो इसको गुलाम सबाहुद्दीन, गुलाम अहमद सबाहुद्दीन। गुलाम अहमद सबाहुद्दीन, बताओ। और MSR है, इन दोनों के दरमियान में टॉस होगा ना, या ये दोनों अपने अपने इल्हामात हमारे सामने रखेंगे, हम उनको तोलेंगे कि इसका इल्हाम ज्यादा भारी है। आप उक्कड़ दुक्कड़ बम्बे पो करेंगे। हाँ, जिस पे 10 आ गए वही ना, टॉस करा लो। मजे का खेल सारा कुछ इन्होंने बना लिया। अच्छा चौहान साहब, मैं दस रहा था, मैनू फिर काम आ गया सी और मेरे सडन नहीं निकलना पिया। और बीबी आदि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਅਜੇ ਤੂੰ ਵੜੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਫਸੀਰ ਸਗੀਰ ਪਈ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ, ਸੂਰਾ ਜ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 61। ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। नहीं, इस तरह नहीं है। उन्होंने जैसे किया है ना, वो आपको पता ही नहीं, मतलब एक ड्रामा क्रिएट किया गया कि देखो तुसी किंज लोग कबूल कर रहे हैं। ठीक है, ਨਜਬ ਭਾਈ ਉਸ ਬੀਬੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਜਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਤ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਡਬੋ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ? ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਘਰ ਤੇ 5 ਭੈਣ ਭਰਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤੇ 5 ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਠੇਲਾ, ਤੇ ਅੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਸਤ ਉਹ ਲੈ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰਬੀਆ ਨੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੋਈ 40-50 ਬਰਫ਼ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਫਿਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਬੈਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਾਰਮ ਕੱਢ ਪੈ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹ 4-5 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਹੀ ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਮਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੈਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਢਾਬਾ ਦੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਆਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਦੌੜਦਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਯਾਰ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕੱਟ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ 40 ਫਾਰਮ 40 ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
तमगा इम्तियाज मिर्जाइयत। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੈਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ? हाँ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਸਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਹੋਏ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, हाँ वो तो ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, 250 ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਵੀਡਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਬੋਸਨੀਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਆਰਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਏ, ਇੱਕ ਕੁਆਰਾ। ਗੋਰੀ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਤਾ ਉੱਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਬਲੀਗ, ਯਾਨੀ ਤਬਲੀਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਾਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ਾਦੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਦਕ ਦੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਬੇਗਮਾਤ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਵੱਖੀ ਦੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ? ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬੜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹਾਲ ਨਾ, ਯੂਕੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਪੜੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਕੁਰਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕੌਣ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਹਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਕੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਰਕ, ਲਾਰਡ ਨਜ਼ੀਰ। ਲਾਰਡ ਨਜ਼ੀਰ। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ये वेख लियो सोशल मीडिया दे नाल कितनी एक मिर्ज़ाइयत नंगी होई है। भाई अपना अकीदा इन्हां दे मुरब्बी अकीदा ही नहीं दस सकदे। हाँ। अकीदा साडा की है? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਓ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਹੱਸ ਕੇ ਵੱਖੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ। ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੇ ਬਲੌਗ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? हफीज साहब पार्टी है। खैरियत है हफीज साहब? शीशे के गुलाम थक हफीज शेख साहब। शेख साहब आए हैं जी। वालेकुम सलाम मुस्कानी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बात कीजिए शहनशाह से, भाई हमारे बड़े हैं। अब शहनशाह से गुलाम क्या बात करेंगे? नहीं, बात यह है कि शहनशाह बन गए हैं तो अब हम तो क्या कर सकते हैं? उनको यही कह सकते हैं जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही कह सकते हैं उनको। पीरस्तानी साहब, हम जिल्ले इलाही, हमारे लिए तो मोहतरम है, कुछ भी कहिए हमें बुरा नहीं लगेगा। मतलब को फतवा तो नहीं लगेगा जिल्ले इलाही कहने से? नहीं नहीं, हमारे दिल के वो दिल्ली बहुत इलाही करीब कह है ना। सकते हैं क्योंकि वो सचमुच इलाही तो नहीं हो जाएगा। अब आप उनसे बात कीजिए, देखें क्या गुफ्तगू चलती है आगे। इस्तारा के रंग में मोहतरम तारा के हमारे मोहतरम है वो। देखिए मुझे तो, मैं तो आप लोगों की तबलीग कर रहा होता हूँ हर टाइम। मैं तो जिस मर्दई के पास जाता हूँ कहता हूँ पहले मुझे दावा दिखा दे, काम उधर ही खत्म हो जाता है। अब इससे अंदाजा लगा लें, आपकी बात आज तक मानी किसी ने? किसी ने तो फिर साडी किन्ने मननी? ਐਵੇਂ ਚੱਕਰਾਂ ਕੰਦਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। जब कहो जी दावा दिखाओ तो वो कहते ने जी जिधर जिधर मैं आयत पढ़ता हूँ आगे से हकीकी गैर शरी गैर तशरी, शरीयत वाले बगैर शरीयत वाले उधर शुरू हो जाते हैं। मतलब कोई मजा नहीं आता कोई ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ % ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਮਰਜ਼ੀ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੌਰੀਏ ਸੌਖੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਬੀ ਸਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੁੱਛੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਬੀ ਸਨ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਅਸਲੇ ਵੇ ਨਬੂਵਤ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਬ ਅੱਗੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ
ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਮ 72 ਜਨਮੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 72 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 72 ਲੋਕ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 73ਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੋਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਈਅਤ ਦੋਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੋ, 73ਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਨੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੀ ਚੁੱਪ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ, ਜੰਬਾ ਫਿਰਕਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ है। मलक साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ वो बता अकीदे की आप तबलीग कर रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं तबलीग कर रहा हूँ मिर्ज़ाइयत की, वो किन के अकीदे की कर रहे हैं? खिलाफत वाली ग्रुप की, लाहौरी जमात की, लाहौर जमात की। तो ये सारा दिन बेचारे आपके साथ बैठे रहते हैं, तारिक जवान साहब, अकबर साहब, और आप तबलीग उनकी कर रहे हैं जो आपके साथ इतना बैठे नहीं होते हैं। हम रद्द मिर्ज़ाइयत कर रहे हैं। मिर्ज़ाइयत करेंगे तो हमारी जगह बनेगी। मेरी बात मानते हैं? वो कहते हैं ना नया नबी आ सकता है ना पुराना, वो तो मानते। कौन? तारिक जवान साहब मानते। ठीक है, वो कुछ अर्सा पहले तक नहीं मानते थे, कहते थे जी दावा है, अब पता नहीं थोड़ा चेंज हो गया। नहीं, दावा तो है नबी और रसूल होने का, पर मजाजी तौर पर, इस्तारा के रंग में, नबूवत नाक्सा के तौर पर, अक्सी तौर पर, आईना जिल्लियत के तौर पर, सिद्दीकियत बरूदी रंग में। खिड़की सिद्दीकियत की है, नबूवत का दरवाजा बंद है। फिर रसूल की खिड़की से नबूवत का दरवाजा बंद है, बकुल्ली बंद है, नबी कोई नहीं आ सकता। और कुरान ऐसे नबियों के ज़हूर से माने हैं। नबूवत दरवाजा नबूवत को बंद, वो बेईमान है। सिराज मुनीर में मिर्जा साहब ने लिखा है। मतलब दावा है नबी होंदा है, लेकिन खिड़की चो आए ने सदीकियत दी जी, ऐसी वो पूरे नबी नहीं है। हाँ, यानी कि दावा है नबूवत है, लेकिन खिड़की जिहदे चो आए ने ओ वे सदीकियत दी खिड़की। ਫਿਰ ਤੇ ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਸਦੀਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। नहीं नहीं, अगे भी सुनो ना, फिर उस खिड़की दे विच अंदर जदों आए ने ते अंदरों कुंडी मार लई। नहीं, मिर्जा साहब कह रहे ने 12 मई तो पहले गुजर चुके ने, और उसके बाद क़यामत तक है जारी। वो तो कह रहे हैं जिल्ली नबूवत का सिलसिला क़यामत तक जारी। मिर्जा साहब नहीं है कह रहे कि खुड़की मार रही है, मिर्जाई कहते हैं। अच्छा, मैं ज़रा थोड़ा सा खुलासा करता हूँ, सुन लीजिए हफीज़ साहब। हमारा और इनका, चौहान जी का, जो कुछ चौहान जी कहते हैं वही हम कह रहे हैं, लेकिन इख्तिलाफ कहाँ आ जाता है? हम क्यों इनको कहते हैं कि आप मुसलमान नहीं हो, ये आप जान जाएं, बाकी बातें हम कहते हैं वो भी वही कह रहे हैं। अब यहाँ पर इख्तिलाफ आ जाता है इनके साथ, ये कहते हैं कि अगर आप मिर्ज़ा जी को नहीं मानते तो आप इस्लाम से खारिज हैं। भाई जब वो नबी है ही नहीं, वो ज़िल है, बुरूज़ है, आप खुद कहते हैं, हकीकी दावा ही नहीं है। जिस तरह मिजाजी रंग में हम कहते हैं कि मैं असदुल्लाह हूँ, तो मैं तो असद नहीं हूँ। अगर मैंने ये कह दिया मैं नहीं मानूंगा इस बात को, तो आप मुझे काफिर कहेंगे। यानी मिर्ज़ा जी को जो नहीं मानता, इनके साथ ये गुफ्तगू की जा सकती है, बाकी मामलात में गुफ्तगू वो तो हमारे साथ ही है। इनके साथ अगर कोई गुफ्तगू बनता है, यही बनता है कि भाई वो ज़िल्ली हैं, बुरूज़ी हैं, गैर हकीकी, गैर शरई, मिजाजी, एक एजाज़ है बकौल आपके, एक नाम है असदुल्लाह, मैंने नाम ही रखा ना, नबी उन्होंने नाम रखा, एक एजाज़ है। तो एक एजाज़ है, एक मकाम है, बकौल उनको दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन मुझे उनकी बातें मानना ज़रूरी है, और मैं नहीं मानता तो जहन्नमी हूँ। इस पे इनसे गुफ्तगू हो सकती है। बाकी जो मिर्ज़ाई, ये मुझे पीर साहब अब ये बताएं, चले हम आपने ठहरे हफीज साहब, एक सेकंड मुझे एक सवाल कर लेने दें, फिर मेरे ज़हन से पहले जवाब तो दे दो सवाल का। मुझे फिर ताकि उनको याद रहे। पीर साहब, इनसे आपने अपना इख्तलाफ बता दिया, ये भी अपने इख्तलाफ की वजाहत कर देंगे। इनसे आपका ये इख्तलाफ हो गया, कहते हैं कि जी अगर आप उनको नहीं मानते तो ये है, और दूसरा खिलाफत वाली जमात वाले वो उनको दिल्ली बरूदी नबी मानते हैं, आप नहीं मानते, ये है। लाहौरियों से क्या आप प्रूव करेंगे कि जी आपके साथ हमारा ये इख्तलाफ है? क्योंकि लाहौरी तो आपके लिए ये कंडीशन ही नहीं रखते कि अगर आप मिर्ज़ा साहब को मुजद्दिद नहीं मानते तो आप फारग हैं, आप जहन्नमी हैं, नाउज़ुबिल्लाह।
या आप मुसलमान नहीं हैं, आप काफिर हैं, आप दायरा इस्लाम से खारिज हैं। लाहौरी तो आपके ऊपर किसी किस्म की कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी, कोई वो चीज़ लगाते ही नहीं है। वो तो सीधा सीधा कहते हैं हम मुजद्दद मानते हैं, आपने मानना है, माने ना माने, आप पे कोई हद नहीं है कि आप गैर मुस्लिम हो गए, आप जन्मी हो गए, नाउज़ुबिल्लाह। तो लाहौरियों से आपका क्या इख्तिलाफ है, ये बताना पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रही बात पहले उनके जान जाए जो खिलाफती निज़ाम है, भाई वो सीधा बात करते ही नहीं, उनका तो बात सीधा है ही नहीं, जिल्ली है, नहीं हकीकी है, नहीं हकीकी है, तो शरई है, ये भी कह जाते हैं। 1 मिनट दे दीजिए। देखें ये जो तहरीर है ना, मुझे इस तहरीर के ऊपर बड़ा वो है, मोहम्मद और अहमद से मसमी होकर मैं रसूल भी हूँ और नबी भी हूँ, नहीं गया भी। बड़ा कैसे साहब आप चुप करें, मैंने अभी एक सवाल मुझसे किया गया, बड़ा अहम सवाल अच्छा है, उसका मैंने जवाब देना है। मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं मसरूफ हो जाऊंगा। अच्छा, अब वो तो सीधा सीधा जो है नबी अलैहिस्सलाम ही मानते हैं, उनका दावा है, उनके बेटों का दावा है, खुद नबी हैं, दूसरी उनके बैसत है, क्या है पिलाना है, बहुत सारी बातें करते हैं। खैर, आपके साथ हमारा जो झगड़ा है ना, क्योंकि आप उनको मुजद्दिद मानते हैं और वो है नबूवत का दावेदार। असल में एक नबूवत के दावेदार को आप मुजद्दिद कैसे मान सकते हैं, समझ रहे? ये तो उन्होंने खुद वजाहत कर दी हुई है अपनी कितनी जगहों पर भी। मेरा अपने आप को नबी कहने से मुराद ये है, मैंने अपने आप को जहाँ नबी कहा है या लिखा है उससे मेरी मुराद ये है, मेरी बात तो मुकम्मल महज मुहद्दस और मुजद्दद है। ये क्यों नहीं आप वजाहत करते कि उन्होंने ये भी कहा है? इसको क्यों आप हाइड करते हो? नहीं भाई, आप मुकम्मल बात नहीं सुनते ना, जल्दबाजी करते हैं। उनका ये भी दावा है ना कि मुझे मानना जरूरी है, जो नहीं मानता उनके बारे में उनका फतवा है ना। नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने तो लिखा है जो मेरे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चले इस पे बात कर लेंगे, मैं थोड़ा सा भी मसरूफ हूँ, इस पे आपसे जरूर बात करेंगे। तारिक चौहान साहब, आप अपने सवाल का जवाब दे लें। जी, आप सवाल का जवाब ले लें कि उन्होंने कहा है कि भी हमारे उनके जो मतलब मैं जो अकीदा बताता हूँ कि मैं कहता हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है इन्नहु ला नबी बादी फ़यकून खुलफ़ाओ फ़यक्सरून। इमाम बुखारी का हदीस है 34-55। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी ये फरमाया है कि यकीनन मेरे बाद कोई नबी नहीं, लेकिन खुलफा होंगे और कसरत से होंगे। तो ये बात तो ये मुसलमान भी मानते हैं कि हाँ, हम भी मानते हैं मुजद्दिदीन का सिलसिला और ये खुलफा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये बात ये मानते हैं। तो इसमें तो हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। अब इन्होंने अगली बात ये की है कि जब हम ये मानते हैं तो फिर आप हमें कैसे कह सकते हैं कि जी आप काफिर हैं? मैं ये कहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने आयत इस्तखलाफ से इस्तेंबात किया है, वमन कफ़र बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, यानी खुदा का रसूल का जब खलीफा आ जाए जो उसका मुनकिर हो वो फासिक है, और फासिक जो होता है ना वो काफिर से भी बदतर होता है क्योंकि वो अल्लाह रसूल का नाफरमान है। तो ये हम कहते हैं ये इस्तेंबात करते हैं हम कि आप इस वजह से मिर्ज़ा साहब चूँकि 14वीं सदी के मुजद्दिद थे, जंबा साहब 15वीं सदी के मुजद्दिद है, आप तो दोनों का इनकार करते हैं, इस वजह से आप फासिकीन हैं। जी आमिर नदीर साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा था कि इनसे हफीज शेख साहब से पूछें कि जो लाहौरियों की वेबसाइट है AAIIL, उससे जाके हकीकतुल वही किताब डाउनलोड कर लें, खोल लें। उसमें जो सवाल नंबर 6 के तौर पर मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ है, मेरा इनकार खुदा और रसूल का इनकार है, किस हैसियत में मिर्ज़ा साहब ने ये बात लिखी है, बस ये बता दें। अपने आप को क्या समझ के, कौन सी अथॉरिटी समझ के ये फैसला किया है कि मेरा इनकार खुदा रसूल का इनकार है? जो मुझे नहीं मानता खुदा रसूल वो को अल्लाह रसूल को नहीं मानता। हाँ बिल्कुल उन्होंने लिखा है। पीछे सब दो जवाब। शेख साहब को जवाब लेना, माइक म्यूट है शेख साहब ਤੁਹਾਡਾ। दूसरे के शेख ने बात की है कि भी हमें आप क्यों कहते हैं,
हम तो कहते हैं कि जी ना मानने कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई जब आप कहते हैं मानने ना मानने से फर्क नहीं पड़ता तो फिर वो क्यों माने आपको? असल बात ये है। और दूसरी बात ये है कि काफिर क्यों कहते हैं? इस वजह से कि मिर्जा साहब खुद कह रहे हैं मुझे जो नहीं मानता अल्लाह रसूल का मुनकिर है, तो वो काफिर ही होता है। तो फिर इस वजह से वो आपको काफिर, आप चाहे इसको माने ना माने, लेकिन जिसको आप मान रहे हैं उसका तो ये कहना है ना जी। मतलब इतना बड़ा दावा उन्होंने जो किया है, इसकी बुनियाद क्या है? कोई बंदा ये कह सकता है मैं आप कि जो मुझे नहीं मानता वो खुदा और रसूल को भी नहीं मानता? शेख साहब हलवे हो गए। मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब भी पीर शेख साहब के पास नहीं होगा जी। तो ये बहुत मुश्किल सवाल है। जी यही तो असल सवाल है कि भी अगर उनके ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आन की लैन की आए ने जिथे है ने उत्थे ही रहंदे, मेहरबानी करते साडे ते एवं रफड़ पा दिता। नीचे सवाल जवाब आया है, जवाब आसान है, वो खातम नबीन की पेशगोई के मुताबिक है। पेशगोई क्या है? किस बात की पेशगोई है? नहीं, मिर्जा साहब ने भी यही कहा ना, क्योंकि मेरे लिए अल्लाह और उसके रसूल की पेशगोई है, इसलिए जो मुझे नहीं मानता वो अल्लाह रसूल को नहीं मानता। हाँ, जी पेशगोई है वो तो अभी डिस्कस कई दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन बहरहाल उनका यही कहना है। इसका मतलब है जो उनका इनकार करता है वो अल्लाह रसूल का मुनकिर है, तो फिर मुसलमान कितों रह गया? इनको नहीं पता। तरियाकुल कुलूब में मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है, अपने दावे के मुनकर को काफिर कहना उन नबियों की शान है जो साहिब शरीयत नबी होते हैं। इसका क्या जवाब है? इसी का जवाब तो दिया सवाल नंबर 6 ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ, मतलब है ये वो बातें जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ बिल्कुल। अगर जवाब होता तो ये हमें नीचे बराड़ के देख के चीख चढ़ा ना डालते। इन्हू ना लियो सीट ना छड़ो, अपनी अपनी सीट फाड़ के रखियो। हाँ आमिर भाई एक सवाल मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ? करो। आमिर भाई जब दीन मुकम्मल है, अल्लाह ताला ने फरमा दिता है कि मैंने दीन मुकम्मल कर छोड़िया है, इस दीन दे उत्ते तुसा ईमान लेके आना। फिर कोई बंदा उठींदा कहंदा है कि मेरे उत्ते अगर ईमान न ले आओ ता तुसा काफिर हो। किस हैसियत नाल कह रहे हैं? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। तारक चौहान साहब तुसा जवाब दे सकते हो? मैं हुणे तो देता जवाब, तुहानू समझ नहीं आया तो की फायदा दोबारा दोहराउण दा। वो तो आदमी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक वो वसीयत रख दे। यानी कि उन्हां दा कहण दा मकसद ये है कि उन्हां हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पेशन गोई दा इनकार कीता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ईसा इब्ने मरियम आएंगे। ये तो गुलाम अहमद इब्ने चिराग बीबी है। ये तो वो ऐसा कोई है नहीं। फिर साडा काम इब्ने चिराग बीबी नाल ही हो गया, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ करके रहना। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜਾਤ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ AK-47 ਹੀ ਹੈ, 8mm ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਬੈਰਲ 12 ਬੋਰ ਪਈ ਹੈ ਸੋਹਣੀ